Our director was like, हाँ अब नाचो. मैंने अपना इंस्टा खोला and I had like I don't know 7-8 messages कि डाइट सब पे posted. You can invest so much money in marketing now and make a song a success. Our manager Amar, he did not like the idea of us including a fifth song. I think a lot of people just think कि हम बस sad music बनाते हैं. Hey guys, I'm Sanchit. Hi guys, I'm Rishabh and we are called Khosla Raghu. We perform, produce, write our own music. Today we'll be talking about our latest EP called Avara, जिसको fortunately बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से. Yeah. Sanchit, you want to tell what's Avara about? Avara. I think the name says it all, right? It does. In a way it does. We don't need to make a video about it. I'm just kidding. I think Avara happened. Generally, I think a lot of people just think कि हम बस sad music बनाते हैं और काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब लाइक रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर जब हमने एक आओ बुला दे EP रिलीज़ की थी तब पीपल केप्ट कमेंटिंग ऑन आवर फीड्स कि यू नो ऑल योर म्यूज़िक साउंड्स द सेम और कहीं पे आई थिंक मुझे दैट हिट मी पर्सनली एज लाइक कि यार इतनी मेहनत करते हैं ये बहुत कम लोगों ने लिखा था. आई थिंक 2 या 3 कमेंट ऐसे आए बट थे वो हिट कर और गया वो बहुत था बुरा मुझे लगा तो. था हमें. मुझे तो हिट कर गया यार तो मुझे लगा था क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम मतलब टू यू नो मेक समथिंग न्यू एवरी टाइम. We try to intentionally not sound the same in every song and we take that effort. Yeah. उसके बावजूद लोगों को लगा कि हमारे गाने सेम है. हाँ. And that's when the idea hit that let's if this is our comfort zone unknowingly, let's try to break it. Yeah. And then we had these 2 songs फिर खो गया और बर्बादी. तब बाय द वे फिर खो गया का नाम फिर खो गया नहीं था, इट वाज दिल जनाब. दिल जनाब जो कि बर्बादी और दिल जनाब दोनों हमने पंजाब में रिकॉर्ड किए थे लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लास्ट ईयर 2024 मार्च 2024 में. एंड देन हमारे पास वो 2 गाने पड़े थे सो वी वांटेड टू मेक यू नो बिकॉज ऋषभ वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट बर्बादी. वी हैड दैट सॉन्ग एंड ही वाज लाइक कि बर्बादी इज द नेक्स्ट लाइक a lot of people told us कि भाई बर्बादी is one hell of a song. Yeah, basically what happened, like how it came to pictures was Sanchit के पास जो demo था, it had a bass line, a groove to it, and I loved it when he played that to me, and I was like, this is so different, this is so cool. सिर्फ ग्रूव नहीं, सब मेलोडीज वगैरह उसमें सब ऑलरेडी थी. वही हमने पहली बार तो आपने बिना उसके सुनाया था ना, बिना मेलोडीज के. Then the melodies obviously you said melodies भी बहुत अच्छी थी, but the groove itself was very catchy. Sure क्या? Yeah. Just the groove, just the bass line. I was like, this is so क्योंकि cool. वो बेस लाइन से स्टार्ट हो रहा था. But I'm हो sure सकता है क्योंकि but the demo like demo per se was very cool. And then we were like कि इस पे कुछ करते हैं. And then we ended up completing बर्बादी. And then when we played it to you know different labels like all the big names in the industry, everyone was really vibing to the track. जिसके पास भी डेमो था उनको अच्छा लग रहा था. हाँ, and everyone was like yeah this song really you know kicks. And the fact that it had a rap in it which happens to be our only collaboration till date which has been released is also the fact that it's different. Yeah, so we played it to a lot of labels and everyone liked it. So Rishabh was very excited to release that song after Aao Bula De EP. और तब I was at a point where I was like कि यार EP का response इतना अच्छा आया था and I was like you know like we have to get over the fact that we are not just you know एक कि हाँ एक single बनाया, एक गाना बनाया. और EP के पहले हमने कितने 17 सिंगल रिलीज कर दिए थे. सो इट वाज आल्सो अ पॉइंट कि यार बहुत सिंगल 17 सिंगल रिलीज हो गए और प्रमोट करना कितना आसान था EP को. एक बार में कंटेंट शूट करना, एक बार में 4 गाने एक साथ हमारी प्रोफाइल में ऐड हो गए. इट जस्ट लुक्ड ग्रैंड. It was also yeah the whole you know branding wise और जैसा कि तुमने बोला कि वो it felt more efficient and artistic also. Yeah. The fact that it's an EP with 4 songs. 4 songs. With a story to tell. And that's when I gave the idea कि यार एक फन गाने से कुछ नहीं होने वाला. अगर फन दिखाना है कि हमें पूरी फन साइड दिखानी है अपनी तो हमें 3-4 गाने बनाने पड़ेंगे यू नो टू काउंटर दैट सैड साइड. Although I keep saying this जब भी संचित एड्रेस करता है that ऐसा नहीं है कि इसके पहले के सारे गाने सैड थे. आओ भुला दे as an EP was very sad and we not accepted it, we made it that way,
बट उसके पहले बहुत गाने थे जो काफ़ी पेपी थे, चाहे रंग तेरा, दिल बट पतंग, आई मेरे साथ wanted And that it- to be a statement Yes. कि हमने आओ बुला दे के बाद we completely switched आर vibe Yeah. and then we made Avara and that's when like I went into songwriting mode and then मैंने 2-3 गाने बनाए and then ऋषभ ने मुझे नाकाबिल भी पिच किया था बीच में जो कि बिल्कुल भी जो कि वही अगेन सैड गाना था और जो वो कि आओ EP बुला का- दे जोन में था जो कि ईपी का पार्ट नहीं था, इनफैक्ट वो हमारा गाना भी नहीं होने वाला था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। Yeah. So, so coming to नाकाबिल then तो मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि हम बर्बादी के और फिर खो गया के अराउंड पूरी एक ईपी बनाए। बिकॉज वी हैड फिर खो गया Yeah. एंड वी हैड बर्बादी एंड वी एंडेड अप मेकिंग अ सॉन्ग कॉल्ड तन्हा। तीन नहीं बट उससे पहले नहीं, तीन ये गाने थे और चौथा हमें लगा कि क्या नाकाबिल से एंड कर दें। एंड देन आवर मैनेजर अमार, ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ अस इंक्लूडिंग अ फिफ्थ सॉन्ग इन द ईपी। आई श्योर नाकाबिल से हम एंड करने वाले थे, नाकाबिल भी नहीं था। सो बेसिकली आई थिंक वी हैड 3 सॉन्ग्स, फिर खो गया, बर्बादी एंड तन्हा एंड देन नाकाबिल ऑल्सो आई थिंक वी हैड 4 गाने थे 4 गाने थे। जब हमने रियान और अमार को सुनाए थे एंड अमार सेड कि बस ये 4 ही गाने हैं ईपी में। Yeah. एंड देन वी यू सेड कि एक और गाना भी मिसिंग है ईपी में, मैंने ऐसा बोला था क्या? कि एक गाना हमने याद है बात की थी कि एक गाना मिसिंग है, एक लिंक मिसिंग है अभी। या ऋषभ सेट कि हम एक और गाना कर सकते हैं और मेरे को लगा कर सकते हैं क्या। एंड देन ये एक्चुअली जो दिल बहरा गाना था वो मैं एल्बम के लिए बजा रहा था। मेरे को लगा कि हम ईपी, मेरे को लगा अभी हम नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू एल्बम, सो आई थॉट कि दिल बहरा वुड बी अ गुड फिट फॉर द एल्बम, सो आई डिड नॉट मेक ऋषभ हियर दैट until ऋषभ सेट कि वी नीड वन मोर सॉन्ग। आफ्टर बैंगलोर शो हमारे पास एक दिन खाली था जब संचित ने मुझे वो डेमो सुनाया एंड आई लव्ड इट। दिल बहरा मैंने पहली बार वहीं पे सुना था। आई डोंट थिंक सो यू लव्ड इट एट फर्स्ट बिकॉज आई रिमेंबर मैंने तेरे को 2 वर्जन भेजे थे, एक विद मेलोडीज एक विदाउट मेलोडीज, एंड देन यू सेड कि यार जब तूने म्यूज़िक सुना तो यू सेड कि इट इज़ वेरी मतलब ये एक ही स्टेट में जा सकता एक ही स्टेज पे जा सकता है एंड यू मतलब यू डिड नॉट फाइंड इट दैट एक्साइटिंग। नो, आई सेड ये ईपी में बहुत अच्छे से फिट हो रहा है और इसको हम करते हैं, लेट्स, आई वाज एडमेंट कि लेट्स ब्रिंग इट इन द ईपी दिल बहरा। हो सकता है। मेरे को याद है कि फिर तुमने म्यूज़िक सुना था एंड यू वर लाइक कि यार इसको मतलब यू नॉट एंटायरली श्योर अबाउट द ट्रैक, बट देन आई वाज लाइक कि ब्रो एक बार मेलोडीज वाला सुन और फिर देन यू विल गेट अ बिगर पिक्चर एंड देन यू हर्ड द ट्रैक विद द मेलोडीज एंड देन ही वाज ऑन बोर्ड कि येस वी आर एडिंग दिस टू द ईपी या एंड देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा दिस सॉन्ग इज नॉट गोइंग टू बी इन द एल्बम एनीमोर, दिस इज गोइंग टू बी इन द ईपी नाउ। So that's how Dil Behra happened, and so then we made Dil Behra, and then we had 5 songs in the EP. उसके बाद का प्रोसेस ये था कि हमने फिर लिरिक्स पे काम किया, दिल बहरा के लिरिक्स पे काम किया, उसको ख़त्म किया, तन्हा के लिरिक्स पे काम किया, उसको ख़त्म किया। एंड आई रिमेंबर तन्हा के लिरिक्स पे मुझे लिखने में काफ़ी टाइम लगा था बिकॉज उस दिल बहरा के लिरिक्स लिखने में काफ़ी टाइम लगा था बिकॉज उस जोन में काफ़ी चीज़ें लिख दी थी ऑलरेडी। एंड देन व्हेन दिल बहरा केम आई न्यू दैट आई हैव टू राइट समथिंग, आई हैव टू पिच समथिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज ये काफ़ी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। एंड देन दैट्स वेयर वी बॉट द 2 अप्रोच इन कि अगर हम दिल बहरा में 2 अप्रोच यूज़ करें, सॉन्ग डिफरेंट सॉन्ग राइटिंग अप्रोच, अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच, Yeah. and we also made a story out of that, and it kind And of I was very sure of the fact it has to be a fun track. yeah, और कहीं बीच में एक इंस्टेंस आया था जहाँ पे वो थोड़ा सा फन एलिमेंट जा रहा था, yes, and that's when we changed the we lyrics. ended up changing the lyrics. कि उसमें लगा कि नहीं मैन दिस सॉन्ग डिमांड्स फन सो इट नीड्स टू बी फन। जो भी इसमें डीप बातें भी होंगी वो भी फन एंगल से होंगी, इट्स नॉट कि मतलब इट कैन बी शैलो ऑल्सो बट यू नो, और उसको आप ऊपर से देखोगे तो वो फनी लग रहा है। True. तो दैट वाज द मेन The crux of the song. या कि इट हैज़ टू बी फन एट द एंड ऑफ द डे। Yeah. जैसे पहले लिरिक्स दिल बहरा की एक लाइन ऐसी थी, जलते नज़ारे जलते इरादे, जलते नज़ारे जलते इरादे, दिल then हुआ बर्फ बर्फ सा। सा, and then we ended up और उसके आगे भी कुछ और था ना। सुनता नहीं है ऊंची पुकारे दिल कमजोर सा। या सो इट वाज वेरी डीप और मतलब थोड़ा जलते और जलते थोड़ा वो था। Then we switched it to घूमे नज़ारे एंड यू वर वेरी एडमेंट अबाउट द फैक्ट कि भाई यही आ रहा है, क्या बिकॉज वो line थॉट है? बहुत अच्छा था और गाने बहुत अच्छे से जा रहा था, बट देन संचित वाज एडमेंट कि भाई ये नहीं थॉट रखना। सो देन रैंडमली वो गाना परदेसी चल रहा था दिमाग में, एंड देन परदेसी में दिस शॉट जहाँ पे दिल बैठा हुआ, द कैमरा इज जस्ट मूविंग अराउंड, एंड देन वहाँ से आइडिया आया दैट घूमे नज़ारे घूमे, और वो फिर आइडिया आई जस्ट पिच्ड एंड संचित loved it and it's like this is the line, and then we ended up using that, so that's how
the lyrics happened. And then it was comparatively easy. बर्बादी की डबिंग बहुत मतलब दिल बहरा की डबिंग comparatively जल्दी हो गई थी. पता है ऐसा कई बार होता है जब मतलब व्हेन आई एम मेकिंग ऑल द मेलोडीज है ना, तो मैं गाना वो डेमो के स्टेज में इतनी बार सुन लेता हूँ अपनी आवाज़ में, तो मैं उससे आई गेट Attach हो यूज जाता टू हूँ. इट एंड आई गेट अटैच टू इट. ऐसा कई बार ऐसे गानों में हुआ है कि व्हेन यू सिंग द सॉन्ग मतलब यू विद योर वॉइस, एट फर्स्ट आई फील लाइक यार दिस इज नॉट साउंडिंग एज फन. Until that grows on you. Yeah, until फिर you start forgetting that part, that मतलब I start forgetting my own demo and then start listening to yours and मतलब and keep working on that and then grows on me. वैसे दिल बहरा में मुझे याद है like the first time we recorded the song I was listening to it and I was like कि यार पहले वाला थोड़ा ज़्यादा मतलब उसमें एक मतलब मेरी आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा फन साउंड कर रहा था. और फिर हुआ भी ऐसे कि फिर कोरस में जो घूमे नज़ारे वाला पार्ट है उसमें फिर मैंने अपनी आवाज़ ही रखी बिकॉज आई थॉट कि It's a very nice switch to your voice. इट्स अ नाइस स्विच. It sounds very fresh. और वो भी एकदम गलती से ही हो गया था बिकॉज मेरे को पहले मैंने पता है मैंने फर्स्ट वर्ड्स अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया. मैंने कहा एक बार देखता हूँ हाउ इज़ इट साउंडिंग, बट देन मैंने रिकॉर्ड किया एंड देन लाइक इतना अच्छा तो नहीं गा रहा मैं. Yeah, I remember we spoke कि शायद first word you said मतलब हम मेरी आवाज़ में नहीं रख रहे थे. You were thinking of singing some other singer on board for the first verse. For the first And then after a couple of weeks. बट देन फिर मैंने कोरस की ना बहुत सारी लेयर्स रिकॉर्ड कर ली अपनी आवाज़ की, और फिर कोरस की लेयर्स एक साथ अच्छी साउंड कर रही थी और फिर तुम्हारी भी आवाज़ थोड़ी सी उसमें मिक्स कर दी, तो फिर वो पूरा फुल साउंड कर रहा था. इट वॉज साउंडिंग लाइक अ यूनिक वॉइस ऑफ इट्स ओन. तो देन वी केप्ट दैट एंड फिर हमें फिर लगा कि हाँ इट्स अ नाइस स्विच मतलब फ्रॉम योर वॉइस टू दैट यूनिक वॉइस एंड देन लास्ट में वापस टू अ यूनिक वॉइस वेयर लाइक ऑल बोथ ऑफ अस आर सिंगिंग on top of our lungs. And people love that switch to the end में जो rock version आता है. People love that switch, which is very exciting in its like in itself. जो एकदम से switch होता है. That's a very beautiful. Yeah, but I think दिल बहरा was one track जो एकदम बहुत naturally आया था. And दिल बहरा हमने बताया भी था I think लोगों को. It's so simple. सिर्फ 5-6 ही चीज़ें हैं उसमें और वो सिंपल ही गाना इतना मतलब लोगों को इतना वो लग रहा है which is and it started picking up organically जब हमने रिलीज़ किया. और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइक एक रैंडम सा मतलब DIY फुटेज वो फिर काफ़ी उस पर ट्रैक्शन आ गया एंड देन पीपल वर लाइक कि what is this track, oh my god what is this cool track. And then Diet Sabya posted it. We apologize, we did not know who Diet Sabya is until 3 months ago and then we realized what a someone from our team sent their story because they posted a story and we did not know what Diet Sabya like who they are and what they do. So we like पहले मुझे लगा कोई डाइटिंग का पेज है ऑनेस्टली. आई हैव टू कन्फेस मुझे लगा कि कोई डाइटिंग पेज है बिकॉज उसके दिख रहे थे व्हाट्सएप पे जब आता है ना स्टोरी तो 4 लाख सम फॉलोअर्स लगा अच्छा कोई डाइटिंग पेज है. बट देन मैंने अपना इंस्टा खोला एंड आई हैड लाइक आई डोंट नो 7-8 मैसेजेस कि डाइट सब्या पोस्टेड एंड देन आई लाइक कि दिस इज दे हैव सच क्रीम फॉलोइंग मतलब डाइट सब्या एक्चुअली दे हैव अ वेरी लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज फॉलो डाइट सब्या. बहुत मतलब मैं जिन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करता हूँ उसमें से आधे लोग एकदम क्रीम ऑडियंस फ्रॉम विशाल भारद्वाज सुरेखा लाइक दे ऑल फॉलो डाइट सब्या. आई लाइक वाह. एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड सेंडिंग स्टोरीज एंड मतलब किसने वीडियो भेजा किसी ने फोटो भेजी लाइक भाई एक स्टोरी से क्या कमाल हो रहा है. एंड देन इट एंडेड अप रीचिंग मेनी पीपल फ्रॉम डाइट सब्या. आई थिंक अ लॉट न्यूअर ऑडियंसेस बिकॉज हम काफ़ी ये भी था कि दिल बहरा वाज सच अ डिफरेंट सॉन्ग from our previous songs. Like and I remember the first story was ईशान खट्टर's where he was just posing and उस पे दिल बहरा बज रहा था. ईशान खट्टर के किसी मतलब he was just posing उस पे दिल बहरा बज रहा था. The second story was us and उस पे लिखा था who are these boys. अच्छा. And someone first because मैंने इंस्टा खोला था and someone had written some Diet Sabya used your song on Ishan Khattar and then just next song they also posted your story. I was like okay this is nice. So yeah this is our shout out to Diet Sabya. Thank you so much for promoting our music. And then they also ended up promoting Barbadi for us. They posted surprisingly Barbadi like since from the first time we made the track you were very sure about ki Barbadi. I was very excited to release Barbadi. I still love the track. Like that love does not go away. And
Everyone was very excited. Like जिसको भी सुना रहे थे, everyone was pumped up about बर्बादी. But then it did not work out. आई थिंक रिलीज़ के सिर्फ 2 महीने पहले हम दोनों की बात हुई थी, जब मैंने बोला था कि शायद बर्बादी इतना सबको अच्छा लग रहा है, शायद इट माइट नॉट क्लिक एज मच, एंड देन वही हुआ. Maybe the song is ahead of its time, guys. ऑल्सो द फैक्ट दैट इट्स नॉट, मतलब नो एक्सक्यूज़, बट रियली बर्बादी जिस दिन रिलीज़ हुआ उसी दिन वॉर एस्केलेट हुई थी. तो हम जिस तरीके से प्रमोट कर रहे थे गाने को, ऑल आर प्रमोशन और ऑल हमारे इंस्टा पे जो हमारा असेट्स थे वो सारे, मतलब ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो सारा वॉर की तरफ शिफ्ट हुआ था. सो हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा था. हमने प्रमोशंस बंद कर दी ईपी की. उस टाइम बहुत ही डार्क फेज था सबके लिए. सो वी एंडेड अप स्टॉपिंग द प्रमोशंस ऑफ आवर ईपी. और उसी दिन बर्बादी रिलीज़ हुआ था, बर्बादी का वीडियो रिलीज़ हुआ था. एंड देन वी शुड ऑल्सो टेल देम अबाउट हाउ शीना एंड शुभम केम इनटू द पिक्चर फ्रॉम दिल बहरा. Sheena happens to be a good friend now, and she ended up liking Dil Behra so much that she kept posting about it. And then Yeah, she used it in one of her stories. and then not just one, she ended up posting a whole reel about it. Our team reached out to her that would you like to be a part of our next song video, and that's how. She's like, really? Oh my god! I'm like, yay! Yeah, it was really fun working with Sheena and Shubham. Yeah, And the whole like Barbadi video was very fun. Hey guys, this was the first part of how we made our EP Avara. And if you liked it, stay tuned for part 2. Bye bye. See you.